Today we will discuss the third chapter, okay, that is human reproduction. In the previous class, we had completed the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. Now we will discuss the human reproduction, okay. So you already have studied the human reproduction in class 10th. What do you understand by the term reproduction? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है इंक्रीज द जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने जनरेशन इंक्रीज करता है, तो उस प्रोसेस को व्हाट वी आर कॉलिंग रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो नाउ वी आर डीलिंग विद द बेसिक स्टेप्स इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शंस. What are the basic steps which are involved in the human reproduction? First, gametogenesis, okay, followed by insemination, fertilization, blastocyst development, implantation, embryo development, and parturition. This is the basic steps in the human reproduction. Gametogenesis. What do you understand by gametogenesis? Means formation of the gametes. So formation of the gametes is known as gametogenesis. Two types of the gamete is formed in the reproductive part. Male gamete is known as sperm and female gamete is known as ovum. Okay, so formation of the sperm and the ovum is known as gametogenesis. Then comes to insemination. After the formation of the gamete, the sperm from the male genitalia, it goes to the female genital part and fuses with the ovum. So the transportation of the sperm from the male genitalia to the female is this process is known as what? Insemination. Fertilization. Fertilization means once the sperm from the female gamete, from the male gamete, they reach the female genitalia and fusion of the sperm and ovum resulting in the formation of zygote is known as what? Fertilization. Okay, understood? Now, once the zygote is formed, it will be attached into the uterine wall. That is your blastocyst development. This blastocyst development is preceded by implantation. After implantation, embryo development takes place and then parturition means delivery of baby. Delivery out of baby. Delivery of baby is known as parturition. ठीक है, तो these are the steps we will study in detail each and every step. So ये basic steps reproduction के, ये पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो यूट्राइन वॉल में अटैच्ड होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एंड देन स्टेज का व्हेन पार्चुरेशन इज डन मींस बेबी का डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन. ठीक है, इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन सारे स्टेप्स में आएंगे. ठीक है, तो पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी है, तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये. नाउ लेट्स कम्स टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इनका लोकेशन कहाँ होता है? इन द पेल्विस रीजन. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, 3 मेन पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. क्या क्या वो मेन पार्ट्स हैं? फर्स्ट है आपके टेस्टिस, सेकेंड वन इज एसेसरी डक्ट्स एंड थर्ड वन इज द एसेसरी ग्लैंड. सो दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टेस्टिस, accessory ducts, accessory glands, and one more thing, that is external genitalia. Okay, so these are the main parts of the male reproductive system. Let's study one by one. पहले हम testis के बारे में पढ़ते हैं. testis क्या होता है? testis जो होता है, these are the see, ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये है टेस्टिस. सो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ वो सिचुएटेड टेस्टिस? तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर टेस्टिस which is situated outside the abdominal cavity in a pouch like structure. ये जो pouch like structure है, this pouch like structure is known as scrotum. So within this pouch your testis is located. Now what is why the testis is located outside the abdominal cavity, why not inside?
रीजन आई विल टेल यू फ्यू सेकेंड्स आफ्टर. सो स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका टेस्टिस प्रेजेंट रहता है. ठीक है. स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर. टेस्टिस क्या करता, स्क्रोटम क्या करता है? ये मेंटेन करता है. स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस that is 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal body temperature necessary for spermatogenesis. See, अब आपको समझ में आएगा कि स्क्रोटम जो है वो हमारा बाहर क्यों है. बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वी नीड द टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. एवरेज बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है. इतने हाई टेम्परेचर पे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म में म्यूटेशंस हो सकती है. दैट्स व्हाई फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, this testis is located outside the abdominal cavity so that it can maintain the low temperature, that is low 2 to 3 degree Celsius lower than the body temperature. क्योंकि इसे लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि विद इन दिस लो टेम्परेचर योर स्पर्मेटोजेनेसिस विल अकर. उनके लिए ये आपका फेवरेबल टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए. दैट्स व्हाई दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अंडरस्टूड. अब इस टेस्टिस का एक एनलार्ज डायग्राम यहाँ पे देखो क्या होता है. जो टेस्टिस होते हैं उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. देखो ये आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ये तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स होते हैं. सपोज ये आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं एंड ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल. इस कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. ओके, वेट आई विल रब दिस पार्ट सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड विद द डायग्राम. ठीक है. देखो सपोज ये हमारा टेस्टिस है. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. ठीक है. जैसे कि हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और ईच कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं. और ईच लोब्यूल्स मतलब एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं. हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मींस दिस स्ट्रक्चर you get in each compartment, each lobules. तो ये आपका क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं. these are known as semi-iniferous tubule. semi-iniferous tubule. और ये semi-iniferous tubule कहाँ होते हैं? so these are in the testicular lobules. ये हमारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है. ओके, ये हमारे टेस्टिस था. टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे कि हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं. एंड विद इन ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स देयर आर 2 to 3 वेरी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज सेमी-इन्फेरस ट्यूब्यूल. ओके, नाउ each semi-inferous tubule is lined inside by 2 types of cells. अगर हम एक semi-inferous tubules की बात करें, देखो ये आपका मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको बाहर लेके आपको बता रही हूँ. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया. मैं एक स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस का यहाँ ले रही हूँ. ठीक है. दिस इज तो व्हाट each semi-inferous tubule is lined or inside by 2 types of cells. 2 types of cells से inlined होते हैं. एक यहाँ पे ऐसे ये जो cells हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं जर्म सेल्स और वी से स्पर्मेटोगोनिया. ओके, दिस टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज इनसाइड द means inside the seminiferous tubule this type of cells are present. These are known as spermatogonia and there are another type of cells is also present. This cell is known as your Sertoli cells. Okay, सो हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जूम में एक्सपेंड फॉर्म देख रहे हैं. तो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं. एक को हम जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं. ये सब क्या है? जर्म सेल्स है. और एक विद इन द जर्म सेल्स हमें इस टाइप के भी सेल्स मिलते हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं. ओके,
जो मेल जर्म सेल्स होते हैं मीन्स जो कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दे अंडरगो मेयोटिक डिवीजन एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? यह स्पर्मेटोगोनिया मेयोटिक डिवीजन में जाएगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपको सर्टोली सेल्स दिखते हैं, दिस सर्टोली सेल प्रोवाइड, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एक ही फंक्शन है कि ये जो भी जर्म सेल्स है इनको ये सर्टोली सेल्स क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर निकाल के बताया, तो समझ में आया कि इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो टाइप के सेल्स दिखे, एक सर्टोली सेल्स दिखा है, जर्म सेल्स दिखा। Germ cells, spermatogonia का क्या function है? They undergo meiotic division and they form the sperm, and your Sertoli cells will provide nutrition to the germ cells or spermatogonia. Now, the region outside the, ये जो region आपको seminiferous tubules के बाहर दिख रहा है, इस region को हम बोलते हैं interstitial spaces. Interstitial spaces, okay? So the region outside the seminiferous tubule, ये आपका seminiferous tubule था, इसकी जो outside region है they are known as interstitial spaces, and these interstitial spaces contains very small blood vessels and interstitial cells. यहाँ पे बहुत small blood vessels भी होते हैं और यहाँ पे भी interstitial cells होते हैं, okay, like this. These interstitial cells is known as Leydig cells. इस सेल को हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल्स है, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये जो स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। विद इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेसेस हमें ब्लड वेसल्स दिखा और हमें कुछ सेल्स दिखे, इंटरस्टिशियल सेल्स। उस इंटरस्टिशियल सेल्स को वी आर कॉलिंग लेडिक सेल्स। अब ये लेडिक सेल्स क्या होते हैं? ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स which is known as androgens. तो Leydig cells का क्या function है? Synthesize and secreting the testicular hormones which is called as androgens. Clear हो गया? Seminiferous tubule क्या होता है? आपका जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स इसके इनसाइड होते हैं। बाहर की अगर बात करें तो वहां ब्लड वेसल्स होंगे और लेडिक सेल्स होंगे। लेडिक सेल्स क्या करेगा? एंड्रोजेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस की। नाउ नेक्स्ट कम्स टू एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। अब देखो बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। फिर होते हैं वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया। देन इज योर एपिडिडाइमिस एंड देन इज योर वास डेफर्न्स। ओके, आपके एनसीईआरटी में इसके डायग्राम भी दिए हुए हैं, गो थ्रू दैट। सो ये एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, 4 एक्सेसरी डक्ट्स हैं, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफर्न्स। ठीक है, वन बाय वन हम फंक्शन देखते हैं। रेटेटेस्टिस क्या करता है? जो रेटेटेस्टिस होता है वो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, मतलब हमारे टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ओपन कहाँ होते हैं? वासा एफ्रेंसिया में। किसके थ्रू ओपन होंगे? रेटेटेस्टिस के थ्रू ओपन होते हैं। सो सी दिस डायग्राम, ये आपका टेस्टिस हमने पढ़ा था। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे गेट ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू दिस रेटेटेस्टिस, मीन थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस। सपोज ये हमारे क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। Okay, these are the seminiferous tubules. This seminiferous tubule they open into the vasa efferentia. ये vasa efferentia में open होता है। तो जिस coiled structure से open होता है उसे हम retetestis बोलते हैं। Okay, so when seminiferous tubules opens into the vasa deferentia through a duct known as retetestis. Okay, retetestis duct के through seminiferous tubule open होता है vasa efferentia में। फिर वासा एफ्रेंसिया क्या करता है? इट लीव्स द टेस्टिस। ओके, इट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस व्हिच इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस। अब वासा एफ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ के कहाँ चला जाता है? एपिडिडाइमिस में ओपन होता है
और ये एपिडिडाइमिस कहाँ सिचुएटेड है, तो ये जस्ट पोस्टीरियर होता है आपका। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट जो है उसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। सो व्हेन our through the retted testis, when it reaches to the vasa efferentia, and vasa efferentia when lift the testes and open into epididymis which is located at the posterior part, this part को हम epididymis बोल रहे हैं। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है epididymis, यहीं पर हमारा ये ओपन होगा। उसके बाद जो epididymis है it leads to the vas deferens, फिर epididymis से vas deferens में जाता है, that ascends the abdomen and loops over the urinary bladder। ठीक है, ये टेस्टिस से ये कहाँ गया, वास डेफरेंस में गया, और वास डेफरेंस जो है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अंडरस्टूड। द डक्ट्स पहले क्या थे, रेटेड टेस्टिस थे। रेटेड टेस्टिस ऐसा डक्ट है जिसके थ्रू सेमिन जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से वो ओपन हुए वासा एफ्रेंसिया में, देन वासा एफ्रेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस। इनका सिचुएशन कहाँ था, जस्ट पोस्टीरियर टू टेस्टिस। From the epidermis it ascends into the vas deferens, यहाँ पे ये vas deferens में आ गए। vas deferens एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एनसर्कल करता है हमारे लूप यूरिनरी ब्लैडर को। ओके, vas deferens का मेजर फंक्शन क्या है कि इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ये इनका मेन फंक्शन है कि ये पास करता है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वहां ये पास करता है। So vas deferens will carry the sperm from the testis and it will reach to the urethra। ठीक है, ये vas deferens का फंक्शन है। This is your tubeless structure is known as vas deferens। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम vas deferens बोलते हैं। ये यहाँ से टेस्टिस स्पर्म को कैरी करता है और इसे यूरेथ्रा तक ले जाता है। Understood the function of vas deferens? Now vas deferens जब वो जाता है तो वो also receives the duct from the seminal vesicles and open into the urethra as the ejaculatory duct। एक ejaculatory duct भी होती है। अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये हमारा vas deferens है। vas deferens जो है ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से ये टेस्टिस हुआ, यहाँ से vas deferens स्पर्म्स को ले जा रहा है। जब ये ग्लैंड्स के पास पहुंचता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के पास पहुंचता है, तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन भी क्या कहती है, स्पर्म में मिक्स कर देती है। अपनी सिक्रीशन क्यों देती है, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो सके और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है यूरेथ्रा तक वो और इजी हो सके। तो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन विल इंक्रीज द मोटिलिटी एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इजी। ट्रांसपोर्टेशन इजी कर देती है, मोटिलिटी स्पर्म की इजी कर देती है, क्योंकि वो एक फ्लूइड मीडियम क्रिएट करती है जिसमें इजिली स्पर्म्स फ्लोट होकर तुम्हारा यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। अंडरस्टूड। सो व्हेन द स्पर्म फ्रॉम द vas deferens reaches the prostate gland or the seminal vesicles, they will secrete some secretions and makes the medium fluidy, and through this medium it increases the sperm's motility and now sperms can easily reach the urethra। Understood? Now when the sperm mixes with the secretion of seminal vesicle and prostate, these are known as the semen। वहां पे इस प्रोसेस को वहां पे क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट आपको दिख रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट एक्चुअली होती क्या है, ये डक्ट स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आउटसाइड द यूरेथ्रा तक। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट का काम होता है। अंडरस्टूड। नाउ यूरेथ्रा जो होता है, जो हमने इतनी यूरेथ्रा बात की है, जो यूरेथ्रा है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड होता है पेनिस तक। ठीक है, नाउ हमने फोर्थ पार्ट की बात की थी, हमने एक्सेसरी डक्ट्स देख लिया, टेस्टिस देख लिया, एक और था एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। जो एक्सटर्नल जिनाइटेलिया होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो पेनिस होते हैं जो कि स्पेशल टिश्यूज से बने हुए होते हैं विच हेल्प्स इन द इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन किसके थ्रू होता है, पेनिस के थ्रू होता है, एंड इट इज द एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। ठीक है, नाउ जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस को उसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, एंड व्हिच इज कवर्ड बाय अ फोर स्किन। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट में आ जाओ, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट समझ में आ गया, सबके फंक्शन समझ में आ गए। अब आती है बारी आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स की। सो एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक तो होता है पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ओके,
वेसाइकल्स, फिर आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब एक एक के फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। चलो, जो सेमिनल वेसाइकल्स होता है, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हुआ, चाहे बल्बो यूरेथ्रल का हुआ, इट इज रिच इन, जो आपका सिक्रीशन मेनली सेमिनल वेसाइकल्स का होता है, जो हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, इट विल बी रिच इन सर्टेन एंजाइम्स, ओके, इट विल रिच इन सर्टेन एंजाइम्स, इट इज रिच इन कैल्शियम, इट इज रिच इन फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशंस होती हैं, जिन्हें हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, दे आर रिच इन सर्टेन एंजाइम्स, दे आर रिच इन कैल्शियम, दे आर रिच इन फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज करती है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, it increase the motility of the sperm and it also make the medium alkaline। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन करती है। थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ल्यूब्रिकेट करते हैं स्पर्म्स को, it lubricates the sperm and also neutralize the medium। ठीक है, तो देखो सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिच होते हैं एंजाइम्स में, कैल्शियम में, फ्रक्टोज में। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, it helps in the lubrication of the penis। ठीक है, lubrication of the penis, sorry, okay। now सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों की सिक्रीशन जो है वो एडअप हो जाती है स्पर्म्स में, जो कि वास डेफर्स के थ्रू आता है, जो मैंने बताया था। और ये जो फ्लूइड है, इन दोनों से जो फ्लूइड में निकलता है वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द स्पर्म। ठीक है, वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्पर्म अलोंग विद दिस सिक्रीशन दे आर नोन एज सीमेन। अंडरस्टूड? और आपको बल्बो यूरेथ्रल का समझ में आ गया कि ये क्या हेल्प करेगा, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, और सेकेंडली ये मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में मीडियम को अल्कलाइन करता है, और ये बल्बो यूरेथ्रल पूरी की तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बनाना है एग्जाम्स में। अगर किसी को भी एक्सप्लेन करते हो, जैसे ग्लैंड्स को करते हो तो ये डायग्राम बनाना, डक्ट्स को करते हो तो भी ये डायग्राम बनाना, और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना। इसके बाद अगर आप एक एक लाइन में भी सबको एक्सप्लेन करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सी, ये तो आपको समझ में आ गया था कि ये हमारी दो टेस्टिस है, यहाँ से टेस्टिस स्पर्म वास डेफर्स जो है वो कैरी करके ले जाते हैं यूरेथ्रा तक। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर दिखते हैं, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस टू आर द सेमिनल वेसिकल्स, ये हमारे सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये दो जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्योंकि जब हमारा ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से क्रॉस करता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन देता है, ये अपना सिक्रीशन देता है, तो ये जो डक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होता है, जो डक्ट इसको फिर से यूरेथ्रा तक ले जाएगा, उसी डक्ट को हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये यूरेथ्रा हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये यूरेथ्रा से डिसेंड हो जाएगा पूरे पेनिस तक, और फिर ये आउटसाइड द बॉडी, मतलब जहां इसको जाना है स्पर्म को फीमेल जेनेटेलिया में ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो पहुंच जाता है। तो अंडरस्टूड होल डायग्राम कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, बहुत ही इजी वे है। ट्यूब लाइक मतलब खुद से देखो कि हाँ ये हमारा स्पर्म ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से गया, यहाँ से सिक्रीशन मिली, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। अगर समझ के डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाना बहुत इजी होगा। ठीक है, बट आई रिकमेंड यू टू ड्रॉ द डायग्राम विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। सिंपल डायग्राम नहीं बनाना है, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वही डायग्राम रेफर करो, वही डायग्राम अपने आंसर शीट में भी होनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों को बताया है, लेकिन आप लोग को ऐसे ऐसे मतलब जैसे मैंने सर्कल करके बनाया वैसे मत बनाना, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है सिर्फ वो डायग्राम बनाना। अब आपने समझ लिया कि कैसे कैसे हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। सो दिस इज होल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेजर पार्ट आज पढ़ा है एक बार उसको सम अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जस्ट इन ब्रीफ एक बार देख लो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आज मेन स्टडी हमने क्या की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले हमने टेस्टिस की बात की थी, उसके बाद एसेसरी डक्ट की बात की, फिर एसेसरी ग्लैंड्स की बात की, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल जेनेटेलियम। ठीक है,
इन 4 चीजों में हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गए कैसे कैसे होता है। टेस्टिस में मेनली हमने क्या पढ़ा था, टेस्टिस का जो आपका मेन काम था, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ही होता है। ये टेस्टिस सबसे फर्स्ट ऑफ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होता है। सेकंड ये याद रखना क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए एवरेज बॉडी टेम्परेचर से, दैट्स व्हाई इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। थर्ड थिंग ये याद रखना कि जो एक एक टेस्टिस होता है, ईच टेस्टिस में कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे कि हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और हर एक लोब्यूल्स में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अगर मैंने डायग्राम बताया था, उसके इंटरनली हम देखेंगे तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं और एक सर्टोली सेल्स होते हैं। अगर उसकी हम आउटसाइड की बात करेंगे जिसे कि हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, लेडिक सेल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ हमने टेस्टिस में पढ़ा। फिर हम आ गए एक्सेसरी डक्ट्स में, 4 डक्ट्स होते हैं, रेटेटेस्टिस होता है, वासा फ्रेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है और वास डेफरेंस होता है। रेटेटेस्टिस क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तुम्हारे टेस्टिस को ओपन करवाता है, कहाँ, वासा फ्रेंसिया में। वासा फ्रेंसिया क्या करता है, टेस्टिस को छोड़ के एपिडाइमिस के पास जाता है जो कि सिचुएटेड होता है पोस्टीरियरली टेस्टिस के। फिर एपिडाइमिस से फाइनली कहाँ आ जाता है, वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस का मेजर फंक्शन क्या था कि इट विल कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड टू रीच टू द यूरेथ्रा। अंडरस्टूड। एक्सेसरी डक्ट्स का यही काम होता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट में एक वर्ड आया था, जब हमारे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, उनकी सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म, अगर इन दोनों को जो साथ में ले जाता है जो डक्ट, यूरेथ्रा डक्ट, उस डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। अंडरस्टूड। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड द यूरेथ्रा। फिर हमने बात की थी एक्सेसरी ग्लैंड्स की, जिसमें हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। देन एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, जो पेनिस है, और ये पेनिस क्या करता है, स्पेशल टिश्यूज से बने हुए होते हैं जो हेल्प फैसिलिटेट करता है तुम्हारा इंसेमिनेशन। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Tomorrow or in the next class we will start the female reproductive system. Until, keep revising. Any doubt, ask me at my number. Thank you so much.